Hello kids, how are you all? Welcome to your English class. Now students, get ready with your English assignment. Let's continue with our English revision. Now in our previous lecture we have done till question number 2a, rhyming words तक हमने किया था. Right? Hope you all have learned that topics. So now let's start with our question number 2b, choose the correct options. Now फर्स्ट वन इज एन एकॉन इज अ फ्रूट ऑफ डैश ट्री. एकॉन जो है वो कौन सी ट्री का फ्रूट है? ए ओक. यस, इट इज अ फ्रूट ऑफ ओक ट्री. अवर करेक्ट ऑप्शन इज ए. सेकेंड, व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. अब ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर कौन सा पार्ट होता है प्लांट का ग्रो होता है? ए शूट. नो. बी ब्रांचेस. नो. सी रूट्स. रूट होता है, जड़ होती है ना ज़मीन के अंदर. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. व्हाट कम्स आउट अबाउट द ग्राउंड. अब ग्राउंड के बाहर ऊपर की तरफ कौन सा पार्ट होता है? ए रूट्स. नो, रूट्स तो ग्राउंड के अंदर होता है. बी शूट. यस, और करेक्ट ऑप्शन इज बी. व्हाट अपियर्स ऑन द ब्रांचेस. ब्रांचेस के ऊपर क्या आता है? ए सीड्स. नो. बी शूट. नो. सी लीव्स. यस, लीव्स होते हैं ना, पत्ते. So correct option is C. Which word in the poem rhymes with sad? Sad. A. Bad. Yes. Bad. Which word in the poem rhymes with away? Away का rhyming word क्या है इसमें से? A. Due. No. B. Bad. No. C. Sad. No. D. Day. Yes. A. Due. No. B. Bad. No. C. Sad. No. D. Day. Yes. The rhyming word of away is day. Which word in the poem rhymes with grew? Grew का rhyming word क्या है poem में? A. Away. No. B. Bad. No. C. Due. और correct option is C. Which word in the poem rhymes with appear? तो year. B. Year. Where do you find shells? अब shells कहाँ मिलता है हमें? A. Lake. No. B. Seashore. Yes. Seashore. Our correct option is B. What did the child find? बच्चे को क्या मिलता है? A. Marble. No. B. Ball. No. C. Shell. Yes. Shell. 11. The song was there. Song कैसा था? A. Sweet, soft, sweet and clear. Yes. Song soft, sweet and clear था. What did the child feel on hearing the song? It is on hearing the song. बच्चे को क्या फील होता है? ए हैप्पी. नो. बी सरप्राइज. वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि शेल्स में से कैसे कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा है. नाउ नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ हैंड. हैंड के साथ कौन सा राइमिंग वर्ड्स है? ए होम. नो. बी वन. नो. सी सैंड. यस. हैंड सैंड. Which word in the poem rhymes with ear? A. Home. No. B. Clear. Yes. Ear. Clear. Correct option is B. Which word in the poem rhymes with true? True का rhyming word क्या है? A. True. Yes. True. Two. The little fish thought that if he would be larger, he would be happier. He would be dash. Actually में वहाँ पर dash है. तो A. sadder. No. B. happier. Correct option is happier. The little fish believed that if he were dash he would be happier. अगर वो क्या होती तो ज़्यादा खुश होती? Smaller. नहीं, small तो वो थी. B. slower. No. C. larger. अगर वो large होती तो happy होते. What is the group of fish called? अब fish के ग्रुप को क्या कहेंगे हम? A. herd. No. B. flock. No. C. band. No. D. school. Yes. School. Now the butterfly was dash. Butterfly कैसी थी? A. brown. No. B. yellow. Yellow butterfly. Now at first the butterfly sat on a dash. Butterfly कहाँ बैठी है? Spider's web सबसे पहले. No. peach tree. No. red rose. और correct option is C. red rose. Now students, our next question is filling the blanks. First one, the school children were the little. जो स्कूल के बच्चे थे वो क्या थे? Little gardener.
द फ्लावर लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे डैश डैम. फ्लावर को क्यों अच्छे लगते हैं बच्चे? बिकॉज दे वाटर्ड डैम. द डैश लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे ब्रॉड ब्रेड फॉर देम. अब किसे बच्चे अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनके लिए वो ब्रेड लेकर आते हैं, यानी खाना. सो बर्ड्स के लिए लाते हैं ना. सो करेक्ट ऑप्शन इज बर्ड्स. Sorry, in blanks you have to write birds. The dash was happy to see the children running in the golden sunshine. Who was happy? Sun. The flower was dash. Flower was tall. The marigold wore a dash dress. Marigold ने कैसा ड्रेस पहना था? Golden. The dress of the fairies were made of flowers. The wings of the fairies were made of. Wings किससे बनी थी fairies की? Sunshine से. Now Dash did not want to go for wedding. किससे शादी में नहीं जाना था? नीना. There was a dash on the bookshelf. Bookshelf के ऊपर, नीना के रूम में bookshelf के ऊपर क्या होता है? Sparrow's nest. There were dash baby sparrows in the nest. कितने baby sparrows थे nest में? 2. Mother suggested to leave. The dash little sparrows were flying all over the room. Now mother suggested to leave plump little sparrows. When Nina came back, 2 plump little sparrows were flying all over the room. The little fish was dash unhappy. Little fish क्या थी? Unhappy. Now the little fish was unhappy because he was very small. क्योंकि वो बहुत छोटी थी. The little fish thought that he would be happier if he were. कब खुश होगी फिश? अगर वो थोड़ी big large होगी तो. तो correct the answer is larger. The group of fish is called. फिश का ग्रुप होता है, हमने अभी MCQ में भी देखा ना, स्कूल. The fish were caught in a net. जाले में फंस जाती है, right? The dash fish waded through the net and slipped back into the water. Smallest fish. सबसे छोटी वाली फिश फिर से नेट में से पानी में गिर जाती है. Now, a dash butterfly flew around the Sonu's garden. Yellow butterfly. सोनू वॉक डैश टू कैच द बटरफ्लाई. सोनू क्या कैसे चलता है बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए? स्लोली एंड साइलेंटली. फर्स्ट द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन अ. सबसे पहले बटरफ्लाई कहाँ पकड़ी गई? स्पाइडर्स वेब. देयर वॉज अ डैश इन अ पाउंड. पॉन्ड के अंदर क्या था? वाइट लोटस. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर फिलिंग द ब्लैंक्स. So our next question is answer the following questions. 3A. Now students, here name the flowers that grew in the magic garden. Magic garden में कौन से flowers grow होते हैं? Rose, sunflower, marigold, poppies, pansies, etc. flower grew in the magic garden. Second, why did the flowers love the little children? अब फ्लावर्स को जो छोटे बच्चे थे वो क्यों अच्छे लगते हैं? उनके लिए वो क्या करते थे? द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देम एंड डग द ग्राउंड. क्योंकि वो उनका ख्याल रखते थे, उनके लिए ज़मीन को डग करते थे और वाटर देते थे उन्हें. वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? नाउ चाइल्ड जो है पोएम में वो क्यों हैप्पी है? द चाइल्ड इन द पोएम इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग एंड शी वॉन्ट्स टू गो एंड प्ले आउटसाइड. ये हमारी गुड मॉर्निंग पोएम में है ना. चाइल्ड क्यों हैप्पी है? क्योंकि अब मॉर्निंग हो गई है और उसे बाहर जाकर खेलना है. टू होम डज अ चाइल्ड से गुड मॉर्निंग? चाइल्ड किसे गुड मॉर्निंग कहती है? Child says good morning to the sky, the sun, the wind, the birds, the trees, and the grass and the bees. Now, why did the flowers stop their song? Flowers ने अपना गाना क्यों बंद कर दिया? The flowers stopped their songs to listen to the children laughing and singing. क्योंकि flowers को बच्चों को हंसते खेलते हुए सुनना था, इसलिए वो अपना सॉन्ग बंद कर देते हैं.
What do people not have? People के पास क्या नहीं होता है? तो people do not have feathers, right? हमारे पास feathers नहीं होते हैं ना, बर्ड्स के पास feather होते हैं, ह्यूमन बींग के पास होते हैं? नो. वॉट डू पीपल नॉट लाइक? अब हमें क्या नहीं अच्छा लगता है बर्ड्स की तरह? पीपल डू नॉट लाइक सिटिंग ऑन द वायर्स एंड थिंग्स. हमें वायर्स पे और उस पर बैठना अच्छा नहीं लगता है. वॉट डू द बर्ड थिंक ऑफ पीपल? बर्ड्स क्या सोचते हैं पीपल के बारे में? बर्ड्स थिंक दैट द पीपल आर फनी एज दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स. कि जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत फ़नी है क्योंकि उन्हें तो कोई चीज़, उनके फेदर्स भी नहीं है, वो वायर्स पे भी नहीं बैठते हैं, इसीलिए वो बर्ड से बहुत डिफरेंट है. नाउ वाई वॉज नीनाज मदर अपसेट? नीना की मम्मा क्यों अपसेट हो जाती है? नीनाज मदर वॉज अपसेट बिकॉज नीना डिड नॉट बाय एनी थिंग फॉर द वेडिंग. क्योंकि वो शादी के लिए कुछ भी नहीं खरीदते हैं. वाई डिड नीना स्टार्ट क्राइंग? नीना रोना क्यों चालू कर देती है? नीना स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट द बेबी स्पैरो. क्योंकि वो छोटे जो बेबी स्पैरोज थे उनके बारे में बहुत उन्हें वरीड, टेंशन हो रही थी. वेयर वॉज द स्पैरोज नेस्ट? अब स्पैरो का नेस्ट कहाँ था? द स्पैरोज नेस्ट वॉज इन ऑन द बुक शेल्फ इन द नीनाज रूम. कहाँ पर था? नीना के रूम में, बुक शेल्फ के ऊपर. वॉट ग्रो अंडर द सॉइल? अब सॉइल के अंदर क्या ग्रो होता है? तो रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल. वॉट ग्रोज अबाउट द सॉइल? द शूट. शूट जो होता है वो सॉइल के ऊपर जो ग्रो होता है उसे शूट कहते हैं. वॉट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? सीड को क्या चाहिए ग्रो होने के लिए? हम हमारे घर में प्लांट में कोई न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, सीड्स डालते हैं, तो उसे क्या चाहिए? वाटर एंड सनलाइट. सीड नीड्स वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. हाउ डू वी हार्म ट्रीज? अब हम ट्रीज को कैसे हार्म यानी नुकसान पहुंचाते हैं? वी कट डाउन द ट्रीज फॉर वुड. वुड के लिए हम कट कर देते हैं. वी बर्न द वुड एंड पॉल्यूट द एयर. तो एयर पॉल्यूशन होता है तो भी ट्रीज को नुकसान होता है. वी डिस्ट्रॉय द होम ऑफ बर्ड्स सो दे फ्लाई अवे. हम बर्ड्स के नेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके. राइट. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू लर्न till answer the following till 15 number. In my next lecture we will continue with 16. further हम आगे के notes continue करेंगे. okay, till then you have to learn till here. so bye everyone.